Hello everyone, today we'll talk about a topic in ethics, that is aptitude, and we will look into as to why aptitude is to be studied, the very first thing. Then the second thing is that what is aptitude and how it is important for a civil servant to have certain values and certain aptitude. These are the three aspects which we need to understand. And when we are saying we need to understand it, so the very first question which I had put, why aptitude? Why do we need to learn aptitude? Aptitude is something that is to be learned because of one reason, that whether you are apt for some work or not. आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आप लोगों के बीच से ही कोई ना कोई कल आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर बनेगा, कोई फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर बनेगा, कोई आईआरएस ऑफिसर बनेगा। तो अगर आप वो ऑफिसर बन रहे हैं तो पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका रोल क्या है एज एन ऑफिसर, आपका रोल क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका स्फीयर क्या है, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, आपको कार्य क्या करना है, ये बाद में आता है, लेकिन आखिरकार वो कार्य है क्या, व्हाट एक्चुअली इज द वर्क। अब कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, जैसे दो शब्दों की हम पहले बात कर लें, वन इज जॉब एंड द सेकेंड इज सर्विस। So if I put this question in front of you all, civil services, अगर बहुत वे में कहा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, यूपीएससी सीएसई, यह है आपकी परीक्षा का नाम। दिस इज द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर, यूपीएससी सीएससी। And now let's talk about the full form of it. This is Union Public Service Commission Civil Services Examination. Union Public Service Commission Civil Services Examination. Now we'll look to some keywords. The commission is for public service. So if you'll talk about its role is to conduct recruitment examination for various public services, various departments that deal with the public service. Now, when you are recruited, when you clear this examination, you will be a civil servant. Again, service. So with these two things, public service and civil service, the exam for which you are preparing is not a job, it's a service. And what does service mean? What does service mean? Service means doing something for somebody as a primacy, keeping other things apart. This statement might look confusing, but to make it more easier, I would use a different statement, and the statement is service means doing something for or doing the work
with an idea that work is the primary thing. And when we say the work is the primary thing, then the other things like our personal benefits, our personal achievements, or our personal aspirations take up the second stage when we are focusing on service. But in case of job, we are set to do something, we'll do it. We are paid for it. So what is the primary aspect in job? Job's primary aspect is our personal growth, our personal achievements, our personal aspirations. But for service, the aspirations of others or the aspiration attached with the work is more important rather than the personal aspiration. In job, the personal aspiration is more important in comparison to the work that we are doing. क्लियर? तो सर्विस और जॉब में यही अंतर है. हम जब जॉब कर रहे होते हैं ना, तो हम उस कार्य को पूरा करते हैं, उसके बाद फिर हम चल देते हैं. आपने हमें एक कार्य दिया, एक जॉब असाइन किया, वो जॉब मैंने कंप्लीट किया, एंड देन आई एम फ्री, आई एम टेकिंग माई मनी एंड आई एम गोइंग. मैं उससे ज्यादा कोई भी सरोकार नहीं रखूंगा उससे. लेकिन जैसे ही सर्विस आता है, तो सर्विस में क्या होता है? सर्विस में ये होता है कि जो कार्य है, वो कार्य कितनी बेहतरी से हुआ, उस कार्य के पीछे का मोटिव क्या था, क्या वो मोटिव अचीव हुआ. और अगर वो अचीव नहीं हुआ है, तो मैं बाकी चीजों को अलग रख के सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा इस चीज को कि वो कार्य कितनी बेहतरी से पूरा हुआ, वो कार्य क्या वो अचीव कर पाया जो वो चाहता था. जैसे एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, या एक आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है? एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी ये है कि जिस जिले में वो है, वहां पे बाकी जितने सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी महकमे उसके अंतर्गत आते हैं, उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्या वो सारे महकमे, क्या वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं, वो अपना वो कार्य बखूबी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? और जब मैं कहता हूं कि वो बखूबी निभा रहे हैं, इसको इंश्योर करना एक आईएएस ऑफिसर का काम है. तो आईएएस ऑफिसर का काम ये भी है, ये जानना कि कौन सी ऐसी कमियां हैं उन डिपार्टमेंट्स में जिसको हम हटा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं पूरे सिस्टम को. ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि एक आईएएस ऑफिसर, मान लीजिए कल के डेट में, कल की तारीख में आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं और आप इस चीज को अहमियत देने लगे कि मेरी सैलरी इतनी है और सैलरी जितनी मेरे को मिल रही है उसके अनुसार मुझे केवल 6 से 8 काम करना है, सुबह के 6 बजे से या सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कार्य करना है, तो क्या आप सर्विस कर पा रहे हैं? वो फिर आपके लिए जॉब बन जाएगी, वो जॉब बन जाएगी. और एक और चीज है, जब मैं कहता हूं कि आईएएस आईपीएस जो है या आईआरएस जो है, वो केवल सर्विस नहीं है, वो एक सिविल सर्विस है, जनता के लिए किया जा रहा कार्य. ठीक है? तो ये कारण है एथिक्स के पेपर में एप्टीट्यूड को लाने का. क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड हमें निर्धारित करता है, एप्टीट्यूड ये निर्धारित करता है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के अंदर वो भावना है कार्य करने की, उस तरीके से कार्य करने की जो वो करना चाहता है. अब पूरी कहानी ये है कि एक समय आता है जहां के आईएएस ऑफिसर जब बनता है, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं, कई ऐसे परिस्थितियां देखी गई हैं और वाक्य देखे गए हैं जहां पे ये पाया गया है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो अपने कार्य को केवल केवल अपनी अचीवमेंट के लिए कर रहा था, जहां पे उसके लिए जनता की जरूरतें क्या हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं थी. वो केवल ये सोच रहा था कि मुझे क्या अचीव हो रहा है, मैं कैसे पैसा बना लूं, मैं कैसे ऑल पावरफुल हो जाऊं. तो वो सर्विस नहीं था, वो एक नौकरी थी जिसके माध्यम से वो अपना पर्सनल गेन कर रहा था. और ऐसा नहीं है कि ये सभी अधिकारियों में है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है. तो आखिरकार जब ये परिस्थिति आई
और जब ये देखा गया सिस्टम में कि या पाया गया कि लोग आ तो जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, लेकिन उनके अंदर लोगों के लिए कार्य करने का, लोक सेवा की भावना नहीं है। लोक सेवा की भावना नहीं है। तो आखिरकार ये समझना जरूरी है कि क्या आपके अंदर वो लोक सेवा की भावना है, क्या आपका वो एटीट्यूड है, आपका एप्टीट्यूड है, वो आपके अंदर क्या वो चीज स्थित है जिसमें आप सेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं। आप किसी चीज को केवल नौकरी नहीं समझ रहे हैं, आप उसको सेवार्थ भाव से कर रहे हैं। और जैसे ही मैं कहता हूं सेवार्थ भाव से, जैसे ही कोई चीज सेवार्थ भाव से किया जाता है, वहां पर यह कभी अहमियत नहीं रखता है कि समय क्या हो रहा है, मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं, क्या उस कार्य को करते वक्त मैं मुखर हो रहा हूं कि नहीं, मैं फेमस हो रहा हूं कि नहीं। अब उदाहरण के तौर पे ये ले लीजिए कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, आप अपने साथ एक क्रू लेके चल रहे हैं जो कि केवल केवल सेल्फी ले रहा है, वीडियो बना रहा है, और आपका एक फैन बेस बना हुआ है, एक फैन बेस बना हुआ है किस बात का, कि फलाने आईएएस साहब जो हैं वो तो जी मतलब एकदम, या फिर फलाने आईपीएस साहब तो सिंघम हैं। ठीक, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद करी जाती है कि वो जब कार्य करे तो बैकग्राउंड में रहे, पर्दे के पीछे। और एक सिविल सर्वेंट जो सच्चाई में है वो एक पर्दे के पीछे का कलाकार है, जो अमूक है, जो कार्य करता है सेवार्थ भाव से। और वो सेवार्थ भाव अचीव होगा कैसे होगा, हाउ विल यू अचीव दैट idea of service, your ability of doing service, that is something is talked in aptitude, that is something that is talked in aptitude. एप्टीट्यूड इसी चीज की बात करता है कि क्या आपके अंदर एप्टीट्यूड है, ये जानना जरूरी है हमें, या ये समझना जरूरी है। इसीलिए आप जब एथिक्स का सिलेबस उठाएंगे तो आप पाएंगे कि उस टॉपिक का नाम ही लिखा गया है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। और यूपीएससी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि हम पहले जानना चाहते हैं कि एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड है तो आप जानिए कि ये फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। और ये फाउंडेशनल वैल्यूज जो हैं, इनको आप बहुत मुखर तरीके से समझेंगे और अपनाएंगे यदि आपके अंदर वो सेवार्थ भाव होगा, आपके अंदर वो सेवार्थ भावना होगी। आप जब अपनी इस पूरी सिलेक्शन के बाद की स्थिति को आप केवल जॉब नहीं समझेंगे, आप इसको जनमानस की सेवा समझेंगे। तो ये अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार वाई मैंने क्यों प्रयोग किया था। पहले जानना जरूरी होता है, पहले हम समझे तो कि विषय वस्तु में या फिर किसी पेपर में किसी टॉपिक को क्यों लिख दिया गया है, आखिरकार जरूरत ही क्यों है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैं अगर जान जाऊंगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं तो शायद मैं बेहतर पढ़ पाऊंगा उसको। आई विल बी एबल टू लर्न इट मोर, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर इफ आई गेट टू नो इट व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। So the first idea is clear. It is required only for one reason, that we must know whether do we have that quality, do we have that value, do we have that aptitude of service towards people. And if we have that aptitude of service towards the people, then we are apt. Then we are apt for that service. Clear? Now let's move to understand as to what is aptitude. Clear? So it is derived from one word, aptos. हम लोगों ने सुना हुआ apt बोलते हैं, this person is apt for this work. जब भी हम बोलते हैं this person is apt for this work, then we are trying to convey one thing. Then we are trying to convey one thing, that this person is most suited for this work. This person is most suited for this work, most fitted for this work. And when we are saying
this person is most suited, most fitted for this work, we are conveying one idea clearly. And that idea is that this person is the best person for this work. No one else can do it. Or maybe any other person can do it, but this can be done only if this person has these qualities. Try connecting to one more example. Many times we watch a movie. फिल्में हम सभी देखते हैं, वेब सीरीज हम सभी देखते हैं, और कई फिल्में और कई वेब सीरीज देखने के बाद हमें यह रियलाइज होता है कि इस एक रोल के लिए, इस कैरेक्टर के लिए शायद ये एक्टर बहुत सूटेड होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा होता है कि उस एक्टर के अंदर वो एप्टीट्यूड है उस तरह से उस चीज को टेकअप करने का, वो एप्टीट्यूड है उसके अंदर उसको टेकअप करने का। तो हम कहते हैं ही इज मोस्ट फिटेड और सी इज मोस्ट फिटेड फॉर दिस रोल। क्लियर? सो एप्टीट्यूड इज एप्टोस, विच मीन्स फिटेड फॉर। आप किसके लिए फिट हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं इसको हम जब और समझेंगे तो हम पाएंगे कि इट इज सम काइंड ऑफ इनहेरेंट एबिलिटी। तो अगर दूसरा वाक्य देखें, अ नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट टू एक्वायर सर्टन स्किल और एबिलिटी इन द फ्यूचर थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। अब एक ही बात कही जा रही है यहां पर एप्टीट्यूड में कि एप्टीट्यूड केवल एक भावनात्मक चीज है, एक साइकोलॉजिकल चीज है। एप्टीट्यूड भावनात्मक सही शब्द नहीं है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं एक तरह से कि एक मानसिक परिस्थिति है, एक व्यक्ति विशेष की साइकोलॉजिकल परिस्थिति है कि वो अगर उस व्यक्ति विशेष को एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाएगा उस चीज को पिक करने का, तो वो बहुत बेहतर तरीके से उस कार्य को कर पाएगा। लाइक अगर मुझसे कहा जाए कि गाना गा सकते हो, यहां बहुत कम लोग होंगे जिनको गाना गाना नहीं पसंद होगा। हर कोई बाथरूम सिंगर है, हर कोई, संगीत हर किसी को पसंद आता है, लेकिन क्या गा सकता हूं? मुझसे अगर कहा जाएगा कि मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी तो नहीं। और एक अच्छा वाक्य बताता हूं कि मैंने तकरीबन 6 महीने ट्रेनिंग ली गिटार बजाने की, और साथ ही साथ मैंने ट्रेनिंग ली क्रिएटिव राइटिंग की। और दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सवाल पूछा अपने दोनों टीचर से कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं गिटार बजाऊं अच्छा, या मैं गिटार बजाना कंटिन्यू करूं, या मैं लिखना शुरू करूं, लिखना कंटिन्यू करूं। तो मुझे जो गिटार सिखा रहे थे उन्होंने एक ही बात कही कि तुम लिखना शुरू करो। तो मैंने पूछा कि क्या मैं लिखता अच्छा हूं? तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन तुम गिटार बहुत बुरा बजाते हो, और 6 महीने सीखने के बाद भी तुमको गिटार बजाना नहीं आता है। तो ये वाक्य एक ही बात दर्शा रहा है कि आई लैक्ड दैट नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट to acquire the skill to learn music. I'm not saying that I cannot learn it, or anybody can learn it, or anybody cannot learn it. Every one of us can learn any new skill or gain new ability. But the point is, whether will we be able to excel in that area? क्या हम उस क्षेत्र के सर्वोच्च पे पहुंच पाएंगे? संगीत हो, गायन हो, लेखन हो, खेल हो, पाक कला हो, भोजन बनाने आना हो, ये सब के सब अलग अलग कलाएं हैं। पेंटिंग, डांसिंग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटीज। बट द पॉइंट इज हाउ क्विक यू कैन लर्न इट, कितनी जल्दी आप उसको सीख सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज एक और है कि उसको सीखने के साथ साथ आप क्या उस क्षेत्र में एक्सेलेंस पा पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न होता है।
whether we'll be able to achieve that feat of excellence, whether we'll be able to reach to that best ones. And that best ones, after training, after gaining the skill, after getting the ability, can be learned only from one idea, that whether that individual had the aptitude. Now let's get back to the example of civil services. If somebody has an aptitude of doing service to the people, once a proper training has been given post clearing the examination, that person will be able to achieve the highest feat as one of the decorated officer, if that person has that aptitude. If that person or that individual has the aptitude of service. Aptitude of service will define that you will be able to pick up quickly. आप बहुत जल्दी, बहुत तेजी में चीजों को अचीव करेंगे अगर आप ये अंदर एक एप्टीट्यूड है। क्लियर? इस ये होता है एप्टीट्यूड का अर्थ। एप्टीट्यूड मीन्स ओनली वन थिंग, दैट इनहेरेंट और natural quality in you which enables you to learn any new skill or ability and achieve in that field if proper training is given to you. Like if you would have ever asked Sachin Tendulkar that you start practicing some other game other than cricket, say for football, or say or even in cricket, let's say that if Sachin was forced by his coach to take up bowling or wicket keeping, so maybe Sachin Tendulkar had that natural inherent talent where he picked up batting move easily, where he picked up batting more quickly. So even in the 11 players of the cricket team, we see one thing, that there are a set of players who are batsmen or batswomen, and then there are a set of players who are bowlers. So can we say that bowlers, if given training, would have turned batsman? They could have turned batsman, but their natural inherent talent made them to pick up that skill of batting or the skill of bowling more quickly, so making them able to achieve excellence in that specific field. Clear? So aptitude is this way important, because it defines that how fitted you are for a job, how good you could be, how best you can perform for that job. Because of this aptitude only, you will be a quick learner also. Say there are people who are good in subjects of humanities, there are people who are good in subjects of science and mathematics. So sometimes it is said that mathematics and science is a subject that is more logical, based on more rational ideas rather than subjects of humanities. So it doesn't mean that somebody who has taken up humanities subject is not rational or not logical. That person is also logical. But the point is, who has taken up that point of being a quick learner? Or to narrow down this example more, some people are very quick in taking up calculations. They calculate more quickly. उनकी गणना बहुत अच्छी होती है। उनको आप संख्याएं बताइए और वो तुरंत के तुरंत उंगलियों पे गिन लेंगे और तुरंत कह देंगे कि हाँ ये इसका उत्तर इतना होगा, या फिर इतना जोड़ आया, या इतना घटान हुआ, या भाग दिया तो ये उत्तर आया। क्यों हो रहा है ये? आखिरकार क्या कारण है? कभी सोचा आप लोगों ने कि आप क्यों एक विषय उठा लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कोई एक विषय उठाएंगे तो उसमें समय लग रहा है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, और ये
ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये किसी और बाहर की विषय पे नहीं कह रहा हूं। आप यूपीएससी का सिलेबस ही लीजिए। यूपीएससी के सिलेबस में जीएस 1 से 4 तक में भी हम एक चीज देखते हैं कि कुछ लोगों का कोई एक विषय बहुत स्ट्रांग होता है, किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, किसी की सोसाइटी बहुत अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं अपने आप को, कि नहीं हमको सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा सा आता है, बहुत इन डेप्थ नहीं आ रहा है, इतना आता है कि मैं पेपर निकाल लूंगा। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेट ऑफ पीपल, but even if I talk about that set of people or different set of people, I'll talk about one thing, that we have seen some people who are very good in polity. We have seen people who are very good in history. We have seen people who are very good in economy. Some people who are very good in geography. They will learn the concepts of geography or understand the concepts of geography more quickly. Why? This aptitude. Your aptitude, your natural ability. तो एक चीज हम पहले अलग कर लेते हैं। एप्टीट्यूड कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर इनहेरेंट होता है, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज जेनेटिक। इट इज जेनेटिक। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप जिमनास्ट बन सकते हैं, ट्रेनिंग दिया जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन एक इनहेरेंट क्वालिटी होगी ना, एंड द इनहेरेंट क्वालिटी इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। बॉलर्स हाइट वाले होते हैं, उनकी हाइट होती है अच्छी खासी, जितने पेसर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, दैट इज अ इनहेरेंट क्वालिटी, inherent talent. Genetically, somebody who is long, who has a good height, ये एक पॉइंट है टू स्टार्ट विथ। अब उसको ट्रेनिंग दीजिए, अगर वो क्विकली पिक कर लेता है तो वो एप्टीट्यूड में कन्वर्ट हो गया उसका। he had that or she had that aptitude to quickly pick up the lessons, और जितना जल्दी वो लेसन्स को पिक करेगा उतना ही अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो अब सिविल सर्विसेज सेंस में समझ लीजिए इस चीज को, कि सिविल सर्विसेज के सेंस में एप्टीट्यूड का एक ही मतलब हुआ, आपके अंदर का वो नेचुरल इनहेरेंट टैलेंट, जहां कि आपको अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ पीपल एंड यू विल बी एबल टू वर्क फॉर द पीपल। क्लियर? कमिंग नेक्स्ट टू इट, एप्टीट्यूड कैन बी बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल। अब सीधी सी बात है कि ये जो नेचुरल या इनहेरेंट टैलेंट है वो केवल क्या मेंटल होगा, मतलब मानसिक होगी, या फिर शारीरिक होगी? तो ये दोनों हो सकती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि रैशनल लॉजिकल मैथमेटिक कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, रैशनल लॉजिकल अगर हटा दीजिए, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करूं, तो दैट इज योर मेंटल एबिलिटी, that is your mental ability. And if I'm talking about a bowler, then that is your physical ability. That is your, if I'm talking about any sports or any work that requires your physical strength to be used. A chess player would require an mental ability or mental aptitude to be a chess player. A person would, who wants to be a chess player or wants to practice or take up chess as a game, then that person should have the mental aptitude. And if someone wants to take up athletics or any other game other than chess, say cricket, football, physical aptitude. Clear? Now coming next to the point, aptitude for particular job increases the probability of success as it leads to fast learning with less effort of different skills required for that job. I've explained this point. I'm taking up this point again when I'm saying that aptitude makes you, how do we identify, do we have the aptitude or not? It could be identified only by one point: how quick learner you are. How quick learner you are. Some of you all might question this statement of mine, saying that, sir, I'm a quick learner. I learn quickly everything. I remember the facts very quickly. But my question would be, are you a quick learner for a game?
Are you a quick learner to cook? Are you a quick learner for music? Are you a quick learner for dance or painting? Then this point comes. Aptitude helps you or makes you to learn the things very fastly. And not for all the things, but only for the job for which you are fitted for. That's why we say that even while we are studying or we have been in college, we have seen our friends, our neighbors, our peer group, that some of the friends of ours or some of the peer groups of ours were quick in learning few things. We were expert in learning few other things. And these two things cannot be quitted. So this clearly shows our aptitudes, our differential aptitudes. Clear? Now, moving next to the other part of the aptitude. Aptitude can be categorized as mental as well as physical, that is discussed. Now, it implies the prediction about the individual's potentialities for the future. ये कहानी सबने सुना हुआ है कि तुम क्रिकेटर बनोगे, तुम फुटबॉलर बनोगे, या फिर तुम एक बहुत अच्छे नेता बन सकते हो, तुम बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हो. कैसे? ये कहा कैसे जा रहा है? अंदाजन तो नहीं है वो. तो ये एप्टीट्यूड आपका बता रहा होता है आपकी पोटेंशियलिटीज के बारे में. सिंपल. अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ लें कि एप्टीट्यूड है क्या, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं या आप कुछ कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है, ये आपका पोटेंशियल है. अगर आपको सही एटमॉस्फेयर, सही ट्रेनिंग, सही जगह दे दी गई तो क्या आप अचीव कर पाएंगे? अचीव कर लेंगे अगर आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है. तो एप्टीट्यूड के लिए यही चीज बता रहा है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियलिटी है उस चीज को अचीव करने की, तो अगर आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग तो आप उसको अचीव कर लेंगे. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द पॉइंट. It is the aptness or quickness to succeed in specific field of activity. Aptitude can also be defined as one simple thing. It is your aptness, your quickness to learn something. Clear? Moving next to three terms that is most important to understand in difference, because sometimes we get confused or we overlap with the three words that aptitude is also something equivalent to our skill ability. Sometimes we say that aptitude is the ability, aptitude is the skill, but there is a difference, thin line difference between all the three. So skill is something that we have learned. Skill is something that we have learned, that has been imparted in us. Clear? Something that we have learned. Skill of writing, skill of walking. So you all will say that how walking is a skill. That is also skill. We know how to walk, we know how to talk. These are skills now. So this is something we have learned in the past. Skill is something that we have learned in the past and now we are implementing it. Clear? Next is ability. It refers to something that individual can do now. It is referring to the situation where something can be done by a person now. आप अभी क्या कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी है. आप अभी क्या कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी है. ठीक है? और एप्टीट्यूड क्या है? आप भविष्य में क्या कर सकते हैं. जो आपको आता है वो स्किल है, जो आपने अपने भूतकाल में सीखा है, जो आपने पहले सीख लिया है वो आपका स्किल है. जो आप आज कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी है, और जो आप भविष्य में कर सकते हैं वो आपका एप्टीट्यूड है. ठीक है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह से. ठीक? अब एक बार इसको पूरी तरह से समराइज कर लेते हैं.
अब समराइज ऐसे कर लेते हैं कि एप्टीट्यूड जानना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए और ये समझने के लिए कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर एप्टीट्यूड है सेवार्थ भाव का, if somebody has the aptitude of service, then that person is apt and fitted for the job of civil services. So important is to understand the aptitude. And then what is aptitude? Aptitude is some kind of natural or inherent ability of a person, or we can say natural or inherent potentiality of a person to learn something, some skill or ability if a proper training is given, which can be both mental and physical. मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकता है वो, क्लियर। और ये एक प्राकृतिक चीज है, आपके अंदर जेनेटिकली आपके साथ होती है वो, आप सीख सकते हैं कोई चीज, लेकिन क्या सक्सेस मिलेगा, क्या आप एक्सेलेंस अचीव करेंगे, वो कहां डिसाइड होता है, वो एप्टीट्यूड से डिसाइड होता है। आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है तो आप सीख लेंगे, आप अचीव भी कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमने ये समझा कि ये तीन शब्द जो हैं इनमें क्या है अंतर, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हम स्किल को भी वही समझते हैं, एबिलिटी को वही समझते हैं और एप्टीट्यूड को वही समझते हैं। तो सिंपल लाइन डिफरेंस है, स्किल जो हमने सीखा है पहले, एबिलिटी हम आज क्या कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी है, और भविष्य में हम क्या कर सकते हैं वो हमारा एप्टीट्यूड है, ठीक है। हम भविष्य में कहां पहुंच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी एप्टीट्यूड डिसाइड करती है, ठीक है। इसके साथ मैं अपने पूरे डिस्कशन को विराम दूंगा और यह बात कहूंगा कि एप्टीट्यूड अगर एक बार हमें समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को जानने के लिए कि कौन सी ऐसी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज की जो कि बहुत अहम है जानने के लिए और समझने के लिए अगर किसी को सिविल सर्विसेज में आना है। और फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों कही जा रही हैं, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जिनका होना अनिवार्य है, जो फाउंडेशन है, दे आर द बेस। और अगर वो वैल्यूज अगर आपके अंदर हैं तो आप कभी भी सर्विसेज में आने के बाद, मैं बार बार सर्विसेज ही कह रहा हूं क्योंकि सर्विसेज है ये, और सर्विसेज में आने के बाद आप इसे नौकरी नहीं समझेंगे, आप इसे सर्विस समझेंगे और आप सर्विस कर रहे होंगे, ठीक है। सो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे बाकी विषयों पे और फाउंडेशनल वैल्यूज पे।